اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے نو منتخب کابینہ کو باری باری یہاں بلاؤں گا، وہ یہاں آ جائیں، انہیں جو ہے مہمان خصوصی اور سرپرست اعلیٰ کی جانب سے ہار پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ایک نہایت واجب الاحترام سینئر ان کی طرف سے ان کی اجرت کا تحفہ ہے، اور اس کے بعد یہیں صف بندی ہو جائے گی اور پھر قاضی سراج صاحب حلف لیں گے۔ میں بڑی تیزی سے چلتا ہوں جناب، سب سے پہلے موجود ہیں ہمارے نو منتخب صدر۔ اچھا، میں لسٹ میرے پاس نہیں ہے، اگر میں بھول جاؤں تو کائنڈلی مجھے گائیڈ کر دیجیے، کسی کو بھول جاؤں تو۔ ہمارے نو منتخب صدر جناب فضل رزاق بابو صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ آپ اور آپ سر، آپ تشریف لائیں۔ رانا صاحب، آپ ارشاد بھائی، آپ کائنڈلی ساتھ، جی آپ ارشاد بھائی کو دیتے رہیں۔ جناب فضل رزاق بابو بھائی، آپ کی بھرپور تالیوں میں ہمارے نو منتخب صدر۔ آپ یہیں جو لوگ ہار پہن لیں گے، اور یہ اجرت کا تحفہ جو ہے، سر ذرا فوٹو سیشن ہمارا لازمی ہے، تھوڑا سا سامنے کی طرف۔ شہزاد خان کو جی ہار پہنایا جائے، جو کہ جیتنے کی خوشی میں ہوگا، اور اجرت کا تحفہ جناب میں ملتمس ہوں۔ ہمارے نائب صدر جو ہیں اشفاق احمد اشفیق صاحب، وہ یہاں موجود نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے پروگرام کو، تو ان کا تو جو ہار ہے اور ان کا جو اجرت کا تحفہ ہے وہ ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ میں ملتمس ہوں نائب صدر دوئم جناب اکبر بیگ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اکبر بیگ صاحب جو سینئر ہیں وہ جانتے ہوں گے، 43 سال سے جو ہے یہ پرنٹنگ کے، اور میں نے ابھی ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی جا رہی ہے، آپ وہ بھی کائنڈلی دیکھیے گا، کہ ہاؤ ٹو پرنٹ کے ٹائٹل سے دونوں پہ ہے، ہاؤ ٹو پرنٹ اینڈ پرنٹنگ پروسیجر۔ جنرل سیکرٹری محمد شہزاد بٹ۔ میں ملتمس ہوں معروف شخصیت کراچی شہر کی اپنے جوائنٹ سیکرٹری نو منتخب جناب ڈاکٹر شجاع صغیر خان سے تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے ہار اور اجرت کا تحفہ جو ہے مہمان خصوصی جناب رانا مشتاق احمد راجپوت صاحب، اور آپ بھی ڈاکٹر صاحب یہیں کھڑے رہیے گا، اور ساتھ تھوڑا ساتھ ہوتے جائیں اور آنے والے کے لیے جگہ بناتے جائیں، لیکن موجود رہیں۔ میں ملتمس ہوں جوائنٹ سیکرٹری فیمیل جناب ناہید خان سے تشریف لائیں۔ جوائنٹ سیکرٹری ہماری جوائنٹ سیکرٹری فیمیل ناہید خان، میں اپنے خزانچی فائننس سیکرٹری سب سے عام شعبہ فضا خالی لیکن مستقبل میں انشاءاللہ بھرا ہوگا اطلاق احمد خان سے اور جناب اطلاق احمد خان۔ میں ملتمس ہوں اپنے انفارمیشن سیکرٹری جناب شیخ ذکیر احمد صاحب سے کہ وہ انفارمیشن سیکرٹری پہلے بھی ہماری ٹیم کا حصہ تھے۔ ایک بڑے خوبصورت ساتھی ہمارا اضافہ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری جناب حسین راجی صاحب سے حسین راجی صاحب کو بنا دیا ہے کلر پوائنٹ، ان کا بیسٹ چینل ہے، ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ایک تھی جی۔ اپنے آفس سیکرٹری اپنے خوبصورت ساتھی جناب شیخ نسیم احمد صاحب کو اور ہمارے میں آپ کا سیکرٹری اور ہماری انتہائی ایکٹیو ساتھی بڑی تیزی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات میں ان کے لکھنے کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کے کالم میں منظر یہاں پہ آتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نہیرہ قیوم کے اور ہمارے انہیں پیش کریں، بڑا اچھا یہ کالم عباس صاحب جو ہم سے محفوظ ہیں کہ وہ دینا چاہ رہے ہیں
जो इन दोस्तों को देना चाहता हूँ, स्टेट बैंक भी अदा नहीं कर सकता, और ये गिफ्ट की कीमत आप लोगों ने अदा करनी है, और उसकी समझो कीमत अदा हो गई। ये पाकिस्तान का सब दलाली परचम है। हम सबकी जान पाकिस्तान, सबकी शान पाकिस्तान, सबकी जान पाकिस्तान। Order in post. देना चाह रहे हैं दोस्तों को, मेरी गुजारिश होगी आप सब सामने आए, तशरीफ ले आए स्टेज पे। आप लोगों को ताइफ दी है, इसके स्टेट बैंक तो क्या IMF भी इसके पैसे नहीं अदा कर सकते। तालियां बजाएं। अच्छा सर जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे भाई ने एक कदीम रवायत जो थी उसको कायम रखी है। जो ओहदा या अपनी जो जिम्मेदारियां थी वो जवान कांधों पर रख दी है और ख़ुद सरपरस्ती कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि बुज़ुर्गों का काम सरपरस्ती करना है, उनके तजुर्बे और मुशाहदात की रोशनी में अपना वो इल्म जो है वो नौजवानों को मुंतकिल करना है। तो मैं अपने भाई दोस्त भी हमारे यहाँ नेशनल प्रेस क्लब के, चूँकि ये भी हमारे साथ नायब सदर हैं और ये हमारे क्लब के बानी हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे क्लब के जितने भी सीनियर जो बुज़ुर्ग हैं वो एक सुप्रीम काउंसिल बना के, और भी बुज़ुर्ग जो भी साफ़ी हैं, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब का इस वक्त मुकाबला, चूँकि अनवर भाई ने एक नारा लगाया कि हम मुहब्ब वतन मीडिया हैं, तो हमें मुहब्ब वतन ये साबित करना है कि हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इस मुल्क को चलाने, बनाने या यहाँ तक पहुँचाने में जो भी अपना कलीदी किरदार अदा किया है, उन सब को हम यकजा करके एक थिंक टैंक बनाएं जो कि सुप्रीम काउंसिल हो, जो कि नेशनल प्रेस क्लब, जो कि पूरे पाकिस्तान का क्लब है, और इसको हम एक इंटरनेशनल क्लब का दर्जा देना चाहते हैं। चूँकि आज सोशल मीडिया है, कोई भी ख़बर जो है वो कराची के किसी भी अखबार में छपती है तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, वो पूरी दुनिया को सेकंड्स के अंदर पहुंच जाती है। तो ये पैगाम जो है ये हमने सब जगह पहुंचाना है, और मैं आप लोगों के तवस्सुल से आज ये भी एक करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत मुसलमान हम यहाँ सब इकट्ठा हैं, हम एक कौम है, तो हमारा ईमान ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कलमा गो हैं। तो आज जो सबसे बड़ा हथियार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो मीडिया का प्लेटफार्म ही इस्तेमाल किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का जो सबसे बड़ा ज़रिया उन्होंने आज़ादी इज़हार राय को रखा हुआ है, और मुख्तलिफ़ अखबारात या जरीदों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौबा नौज़ुबिल्लाह कार्टून शाया किए जाते हैं, तो सिंध यूनियन जर्नलिस्ट है, नेशनल प्रेस क्लब है, और भी अपने मीडिया के दोस्तों को हम शामिल करके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएं। हम इंटरनेशनली लेवल पर ये बात, चूँकि दुश्मन को मार रहे हैं तो उसी के हथियार से मारो, वो आप ही का प्लेटफार्म यूज़ कर रहा है। इमरान खान को ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी मुल्क की करे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, चूँकि वो हमारा हथियार है, तो हमने अपने हथियार के ज़रिए उनका मुकाबला करना है, उनको पैगाम देना है, उनको जवाब देना है। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में जो उनका हिस्सा भी शामिल है, जो कि सरपरस्ती करती हैं मीडिया की, तो हमने उनसे बात करनी है, उनको मुकाले करने हैं, उनसे बैठ के मुज़ाकरात करने के। आज़ादी इज़हार राय का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करनी है। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इसका मौका दिया, और मेरी ये रिवायत है, मेरा नाम अजरक शाह वारसी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को अजरक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, और ये हमारे बड़े सपोर्टर हैं, और अगरचा के इनका शोबा ज़िंदगी में और रहा है, ये एक बड़े सीनियर पुलिस के ओहदे पर फायद रहे हैं, उसके बाद ये दूसरी फील्ड में आए रिटायरमेंट के बाद, और जी और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ी अहम जो है सरगर्मियाँ अंजाम दी, और हमारे पिछले साल भी हमारे ये कानूनी मुशीर जो है और लीगल एडवाइज़र जिसे आप कहेंगे तंजीम के मुंतखब हुए थे, और मेरे भाई भी मुंतखब हुए थे, और इस दफ़ा फिर दोबारा हुए हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ आमिर ज़िया भाई से मुल्तमिस हूँ आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, और मैं मुल्तमिस हूँ कि हार जो है मेरे साथी हमें दें, इमरान एक हार जो है मुझे दें, आप वहाँ बराह रास्त वहाँ चले जाएँ मेहमान खसूसी के पास, आमिर भाई राजपूत बरादरी को मिले 9 हो गए, सॉरी। तो मैं इनको बताऊं कि ऐसी ठीक है, क्योंकि मैं टीम का हिस्सा हूं, तो मेरे पास भी 2 बड़े सिविल अवार्ड है, लाल इम्तियाज और सरदार इम्तियाज। तो ये मुकाबला
जो है वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचेगा, जज्बा वहाँ तक पहुँचेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है आमिर भाई, ये जो आपने बात मुझे आज बताई, और इस पे बाखुदा बड़ी दिली मुसरत हुई, बड़ा फ़ख्र। आप भी यहीं तशरीफ़ रखेंगे जी, आपने भी हल्फ उठाना है। और ये जी हमारी तंजीम हमारी मुकम्मल होगी। साथी जी अफजल वारसी साहब, आप अजरकों का तोहफा आप दे दें, तो उसके बाद हम अपनी हलफ बर्दारी की तरफ जाएंगे। उनके क्लब के सीनियर 2 रुकन हमारे अनवर भाई, तो मंदूब साहब आप भी ऊपर आ जाए, और खुसूसी को जो है अनवर भाई, अनवर अली वो उनको शबाना सहर बाजी आप भी आ जाए। NPC में बहुत टाइम देती हैं, बड़ी खिदमात हैं इनकी, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात है कि सब दोस्त अजरकों का तोहफा लाए हैं, वरना बाज़ तकरीबात में लोग टोपियों का भी तोहफा लाना शुरू कर देते हैं, कर दिया है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो अनाउंसमेंट में बड़ी परेशानी होती है कि जी फ़लाँ साहब फ़लाँ को टोपी पहनाएंगे, बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शुजा सगीर खान, कायदे होम्योपैथी। अच्छा, हमारे खूबसूरत दोस्त बैठे हैं जी माशाल्लाह, महफिल को ज़ाफ़रान बनाए हुए। मेरे लिए भी तो अवार्ड या अजरक है, लेकिन आपके लिए सिर्फ तालियां हैं जनाब, तालियां भरपूर। जो भी होगा एक हमारे बड़े खूबसूरत फैमिली है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप जब तक आप अपना कर रहे हैं, हमारे गवर्निंग बॉडी की हवाले से अच्छी है, इंशाल्लाह गवर्निंग बॉडी भी जब हमारी मुकम्मल हो जाएगी तो उसकी भी हम तकरीर का इनेकाद करेंगे। हमारे गवर्निंग बॉडी के जो मेम्बरान मुंतखब हुए हैं उनमें से जनाब राजा मोहम्मद आरिफ साहब सामने बैठे हैं, राजा मोहम्मद आरिफ साहब, और मुसद्दिर बलोच के साहबजादे तथा मुसद्दिर सामने बैठे हैं, और हमने जो है वो अमित भाई को भी शामिल किया था, शाम भाई गवर्निंग बॉडी में भूलना रहा हूँ, और ईशान भाई को भी। तो गवर्निंग बॉडी का हमारा सिलसिला जारी है कि हमें कुछ की मदद करना है जी। मेरी गुजारिश होगी कि अब बिल्कुल जो है कि हमारे जो अहदेदारान हैं उनके अलावा जितने भी मौजूद मेहमान हैं वो 6 करीब 3 बच्चे कुर्सियों के अहदेदारान से खड़े रहेंगे, बाकी जितने भी हमारे मेहमान हैं वो बड़े मेहमान जी आगे।